नहीं होते जब तक ना खुश ना हो, ऐसे ना के रखें, क्योंकि ऐसे दिन भर की टेंशन, पूरे दिन भर की थकान, पूरे दिन भर की नेगेटिविटी रात को जब हम सोने लगते हैं तो सारी हमारे सामने होती है। हम थकान से कम, नेगेटिविटी से ज्यादा थक चुके होते हैं। तो सोते समय हमें एक प्रैक्टिस हैबिट, एक अच्छी हैबिट डेवलप करनी चाहिए। हम लोग सोते समय एक अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, कुछ मंत्राज अगर आपको अच्छे लगते हैं आप वो सुन सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल भजन है जो आपको अच्छे लगते हैं, वट जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हो, आप उनको सुनते हुए अगर आप सोएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत रिलैक्स रहेगा और आप मोनोरा वायरस से बहुत हद तक बच जाएंगे। आप पाएंगे आपको बड़ी साउंड स्लीप आएगी और सुबह आप पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे। छठा स्टेप, Please stay under moon. Hello friends, welcome to FitTuber. Done with my day, I normally go out on my balcony where I simply stay under moonlight for some time. Moon helps me relieve the stress of a tiring day. It reduces pitta, cools down the body, conducive for sleep. Sometimes I may even go out for a little stroll. Next thing that I do is I go to the kitchen and have milk. Warm milk has sedative properties which helps you calm down, preparing better for sleep. Be sure that when I'm referring to milk, it's desi cow milk. Depending upon my mood, treating myself with this golden spiced milk. I take about milk in a cast iron kadhai with flame. That milk prepared in one by one, I add my favorite spices. Starting with goes in cardamom, cloves, and a little black scent. Once it boils, I strain out the frothy spiced milk gets ready. Season the warmth of these spices. Then I go to my bed. I do is set the tone for a deep sleep fragrance. I use an essential oil diffuser which are 90% water, elaborate healing practice, and dessert. Maybe an experience that remembering any day or even a video idea. I scribble just about anything that's on my mind. Then I read something light. Like these days, I'm reading the washroom and wash my face. I fill my mouth full with water and splash water on the eyes as it relaxes them almost instantly. I also find it necessary as just like many of us, my work nature is such that I too have to spend 10 to 12 hours in front of the screen. Post this, I clean my teeth using tooth powder and scrape my tongue for oral health. Then I also wash my feet. It eases up the whole body just like that. Well, this step can be a little intimidating during winters, but it's worth it. Though you can even use a wet towel instead. Then after drying my feet with a towel, I take some sesame oil and massage them for a couple of minutes. You might be amazed to know that your feet has some points that are connected to your head. When you massage them, you feel light and sleepy. Don't believe me? Try getting acupressure foot massage someday. The massage. Then I lie cow ghee. I turn all lights Tratak. Tratak is a yogic purification technique that involves staring at one point. In my case, the flame of the lamp. It increases concentration ability, strengthens the eyes, and has some other amazing benefits. I spend about 5 to 10 minutes and then close my eyes to meditate. I try to remain aware of every inhalation and exhalation. I meditate for about 20 minutes, sometimes less and sometimes even more. After meditating, I am almost ready to fall asleep. Usually I sleep on the mat and sometimes on bed. In summers, I prefer sleeping outside under the stars with a pedestal fan and a mosquito net. Just before sleeping, often I put a drop of Trifla Greth in each of my eyes, especially on those days when I had spent 12 hours straight editing a video. It cleanses and gives a cooling effect to the eyes naturally. Some other days I may even practice Nasya by putting a drop of ghee or a medicinal oil like Anutelam in each of my nostrils. On a few days I skip this step altogether. Then practicing affirmations for about a couple of minutes in my mind, feeding my subconscious with positive thoughts and with a slight awareness of my breath, I doze off almost instantly. With my head pointed in the east direction, I sleep on the left side as it helps digest the food better. This holistic routine not only induces deep sleep faster, but more importantly, when I wake up the next day, I feel fresh and energetic. Most days I wake up even before the alarm clock buzzes. Let I complete before just to cool yourself down, but other than that nothing. आसपास की जगह थोड़ी बहुत साफ कर लीजिए। बहुत ही गंदी जगह में सोने से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। कुछ अच्छी सेंटेड वाली कैंडल्स कम हो जाएगा। गर्म पानी से नहा लीजिए, अच्छे साफ कंफर्टेबल कपड़े पहन लीजिए और बस ये ध्यान में रखिए कि आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएं। इसको करने का पॉइंट ये कि आपके दिमाग को पता होना चाहिए कि आप सोने का टाइम होने वाला है। अगर आप एकदम लास्ट मोमेंट तक काम करते रहेंगे तो आपका दिमाग वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में ही फंसा रहेगा और ये आपकी नींद की क्वालिटी बहुत कम कर देगी। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बहुत पढ़ाई कर रहे हो या बहुत काम कर रहे हो और जब आप सोने जा रहे हो तो आपको नींद ही ना आ रही हो? ये हम सब लोगों के सोने से पहले। और अगर आपको बहुत दिक्कत होती है अपने दिमाग को बंद करने से तो ये अगली टिप आपके काम आने की कहानियों वाली नॉवेल्स पढ़िए। अब मैं ज्यादा फिक्शन, आप अपने दिमाग से भी बाहर निकल जाएंगे, सो पाएंगे। तीसरी चीज जो आपको करनी चाहिए, दिन में एटलीस्ट एक बार तो रेकमेंड करता ही हूँ, तो अगर आप दिन में सिर्फ एक बार कर सकते हैं तो ये आपको सुबह में ही करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा मैं कहूंगा आपसे कि आप रात में भी सोने से पहले 5 से 10 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे तो आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा। अगर आपको मेडिटेट करना नहीं आता तो बहुत सिंपल है ये चीज, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करिए और अगर कोई भी थॉट्स आए तो इमेजिन करिए स्ट्रेस लेवल्स भी कम हो और आपकी नींद की क्वालिटी और बढ़ जाए। वीडियो देखा है तो हो सकता है आपने कुछ एफर्मेशंस लिख रखे हो। एफर्मेशंस का बेसिकली मतलब होता है कुछ सेंटेंसेस ऐसी चीजों के बारे में जो आप ना खाता हूं और मेरे 6 पैक एब्स हैं, काम करता हूं और मैं $1 मिलियन लेने चाहिए और उनके पीछे एनर्जी फील करनी चाहिए। बस ये ना बोल दीजिए कि मैं $1 मिलियन कमाता हूं एक महीने में, $1 कमाता हूं एक महीने में और मैं बहुत खुश हूं इस बारे में। कि आपको अपने अगले दिन के टास्क सारे लिख लेने चाहिए। अब सिर्फ यही टिप फॉलो करके मेरी प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ गई है। हर रोज रात में सोने से पहले मैं लिख लेता हूं कि मुझे अगले दिन क्या करना होता है और आपको ये बात ध्यान में रखनी होती है कि ये चीजें मीनिंगफुल काम हो और छोटी चीजें बर्तन धोने और ये सब चीजें रियलिस्टिक भी होनी चाहिए। अगर आप ढेर सारा काम लिखते हैं जो बहुत देर लगेंगे करने में कि आपको एक ही दिन में खत्म करना है, तब तो आप फेल करेंगे ही उस अगले दिन। तो आपको रियलिस्टिक रहना होगा कि आप एक दिन में कितना काम एक्चुअली में कर पाएंगे और एक बार जब उसको लिख लीजिए तो अपने आप से कमिटमेंट कर लीजिए कि चाहे अगले दिन जो भी हो जाए, आपने अगर वो चीज लिस्ट पे लिख ली तो आप उसको करेंगे ही। और यही करिए, अगर ये आप अपनी पहचान बना लें कि जो भी चीज आप उस लिस्ट पे लिखेंगे वो आप उस दिन करके ही रहेंगे तो आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी।
इससे आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जिससे आपको अपनी जिंदगी के कंट्रोल में होना चाहिए और खास करके कि आप अपना दिन कैसे शुरू करें और आप कैसे खत्म कर रहे हैं। और सबसे बड़ा पार्ट है इसका ये कंट्रोल करना कि आप कब सुबह उठते हैं। ज्यादातर लोग रोते रहते हैं कि वो लोग सुबह उठ नहीं पाते हैं, और इनका सोल्यूशन भी बहुत आसान है कि और जब आप सुबह उठिए तो ये ध्यान में रखिए कि आप फौरन अपने बेड से उतर जाएं। अगर आप स्नूज बटन दबाएं या 5 मिनट और सो जाएं या कोई भी एक्सक्यूज अगर आप लेने लगे तो आप सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमेशा ये याद रखिए कि जब आपको उठना हो तभी आप उठ जाएं हर रोज। यही चीज अकेले आपकी जिंदगी में बहुत डिफरेंस पैदा करेगी। और It's very simple. I sit in a dark room, sometimes even earphones above that. Images of air moving into my nose and out through my mouth. Whatever will help you to focus on the breathing, that's what I recommend people do. Set my alarm on my phone to go off after 11 or 12 or 15 minutes or so, and I just put that face down, and then I don't think about it. I just close my I meditate every day. टाइम बर्बाद होगा गोल जो मेरे गोल का नहीं है। रिसर्चर्स 1 साल के बाद वहां आए तो जिन लोगों को रोज सीढ़ियां चढ़ने के लिए बोला गया था उनके हेल्थ दूसरे ग्रुप के कंपैरेटिवली बहुत बेटर थे। इस एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट जगहों पर रिपीट किया गया और हर बार रिजल्ट सेम रहे, यानी स्मॉल स्टेप्स कैन लीड टू बिगर रिजल्ट्स। नेक्स्ट आता है काइजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। कार एक्सीडेंट की ग्रुप ए के परिवारों में सिर्फ 17% फैमिलीज ही अपने घर के सामने बिलबोर्ड लगाने के लिए राजी, जबकि ग्रुप बी में 75% इन्हीं लोगों को 3 इंच बाय 3 इंच का स्टिकर लगाने के लिए कहा गया था। यानी जब हम शुरू में काइजन स्टेप लेते हैं, यानी बहुत छोटा स्टेप लेते हैं, तो बड़े गोल्स पूरे करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट सवाल पूछते हैं तो इसे लगता है कि ये चीज पक्का हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये उसका आंसर ढूंढने में लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके सामने वाले पड़ोसी के इन शॉर्ट, हमारा ब्रेन किसी भी क्वेश्चन को रिजेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए अगर हम अपने से बार बार ये सवाल पूछते रहेंगे कि मेरे में प्रॉब्लम क्या है यार, मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मैं इतना बड़ा लूजर क्यों हूँ, हर आदमी मेरे अलावा खुश क्यों है, मैं इतना बड़ा गधा क्यों हूँ, अब हमारा ब्रेन हमसे ऐसा नहीं कहेगा एरर। मैं अपने से ये सवाल नहीं पूछ सकता। ऐसे सवाल तो कोई अपने दुश्मन से भी नहीं पूछता, क्योंकि ब्रेन में ऐसा हिस्सा नहीं है। इसलिए जब हम अपने से पूछेंगे कि मैं इतना बड़ा लूजर क्यों हूँ, तो हमारा ब्रेन कहेगा जब तू 10 साल का था तो तू अपने दादी से बदतमीजी की, बढ़ा चढ़ाकर क्यों ना बताना पड़े। तो अगर हम अपने क्वेश्चंस चेंज कर देते हैं तो हमें कंप्लीटली डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। कि मैं आज ऐसा कौन सा छोटा काम कर सकता हूँ, सिंपल काम करने के लिए कहा, और ये काम था कि उनके एम्प्लॉइज को खुद से एक सवाल पूछना है, जो कि था कि मानते थे और इसलिए ज्यादा सजेशन देते हैं। जबकि बाकी कंपनीज जहां पर रिवॉर्ड बहुत बड़ा है, यानी $450 है, इस रिवॉर्ड को पाने के लिए उन कंपनी के एम्प्लॉइज को लगता है कि उनका आइडिया भी एक रेवोल्यूशनरी आइडिया होना चाहिए, और इसीलिए वो छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से वो काइजन को अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। तो ये छोटे स्टेप्स सुनने में तो बहुत इनसिग्निफिकेंट लगते हैं, लेकिन इनका इफेक्ट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि काइजन का मेन गोल है कि हमारे मन से डर को हटाना। वो डर जो हमें लगता है जब हमारे सामने बहुत बड़ा टास्क होता है और बहुत कम टाइम होता है, लेकिन काइजन की मदद से हम हमेशा एक्शन मोड में रहते हैं। काइजन को हम किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ज्यादा खर्चा करना, हम पूरे दिन में एक एडवर्टाइजमेंट देखते वक्त चल सकते हैं, और अगर हमसे ये भी ना हो तो हम जिम जाके ट्रेडमिल में 1 मिनट के लिए खड़े हो सकते हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना, हमें सिर्फ खड़ा होना है, इवन चलना भी नहीं है। अगर हमें अपना स्ट्रेस लेवल कम करना है तो स्ट्रेस के टाइम हम सिर्फ एक डीप ब्रेथ ले सकते हैं। अगर हमें घर साफ करना है तो हम एक दिन में सिर्फ 5 मिनट का अलार्म रखें, उसमें जितना हो उतना साफ कर सकते हैं। अगर हमें कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है तो पूरे एक हफ्ते में सिर्फ एक नया वर्ड सीख सकते हैं। ये भी आपने एकदम ठीक सुना कि आपके पास एक वर्ड सीखने के लिए पूरा एक हफ्ता है। अगर हमें ज्यादा नींद लेनी है तो हम अपने रेगुलर टाइम से सिर्फ 1 मिनट पहले सो सकते हैं और अपने रेगुलर टाइम से 1 मिनट ज्यादा देर तक अलार्म सेट कर सकते हैं। दोस्तों, इस बुक में और भी काफी ये पता चलने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक और सैड हो गए, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने एक मेंटर से ये बात सीखी थी कि हमारा कोई भी नेगेटिव रिजल्ट जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, उसको सोच के नेगेटिव फील करना तो एकदम ठीक है, लेकिन बस 5 मिनट के लिए, उससे ज्यादा नहीं। मतलब लिटरली जब भी कुछ बुरा हो तुम्हारे साथ तो टाइमर लगा लो, 5 मिनट तक गुस्सा रहो, सैड रहो, चिल्लाओ, रो लो, जो करना है कर लो, लेकिन 5 मिनट बाद आगे बढ़ जाओ, पॉजिटिव सोल्यूशन सोचो। क्योंकि एज एन इंटेलिजेंट इंसान 5 मिनट से ज्यादा उस चीज पर अफसोस करना जिसे हम बदल नहीं सकते, ये चीज बस हमारी सिचुएशन और जिंदगी को और बुरा करेगी, ताकि कुछ भी अच्छा। इसलिए आगे बढ़ो पॉजिटिवली। और यही बात हेल ने तब भी अच्छे से याद रखी। उन्होंने यही सेम रूल अप्लाई किया और फिक्र करना बंद कर दी। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा 2 ही चीज हो सकती है, या तो जैसे डॉक्टर बोल रहे हैं कि हाँ मैं कभी नहीं चल पाऊंगा, जो कि अगर हुआ भी तो मैं व्हीलचेयर से चलने वाला सबसे खुश इंसान बनकर दिखाऊंगा, या तो दूसरा ऑप्शन मैं डॉक्टर की बात को गलत साबित करके दिखाऊंगा और वापस चलने लगूंगा। ये 2 चीजें डिसाइड करने की उसी कंडीशन में। ये देखकर डॉक्टर्स को लगने लगा कि शायद हेल्थ सच्चाई एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बट बात तो कुछ और ही थी। इनका रिजल्ट ये निकला कि हेल्थ बहुत जल्दी ठीक होने लगे, इतना जल्दी कि डॉक्टर्स भी हैरान हो गए, और बस 3 हफ्ते के बाद उन्होंने डॉक्टर्स को गलत प्रूफ करके चलना स्टार्ट कर दिया। नहीं, बल्कि बस 2 चीज करने की जरूरत है, उठ के एक्सरसाइज करो, और दूसरी, एक्सरसाइज करने के बाद कोई भी एक सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर बुक पढ़ो। ये एडवाइस हेल्थ को जरा भी अच्छी नहीं लगी और वो वहां से चले गए। मॉर्निंग रिचुअल होना, मतलब सुबह उठ के कुछ स्पेसिफिक अच्छी चीजों को रोज करके उनकी हैबिट बना लेना, ये एक सिंगल सबसे इंपैक्टफुल चीज होती है लाइफ में सक्सेस पाने के लिए। क्योंकि जो सुबह को जीत लेता है वो अपना पूरा दिन जीत लेता है, और एक अच्छी मॉर्निंग रिचुअल शेप करती है हमारे ब्रेन और माइंड को, जिसके बेसिस पे फिर हमारा पूरा दिन अच्छा गुजरता है। सो इसीलिए फिर ऑथर ने डिसाइड किया कि वो सुबह उठ के बस एक्सरसाइज और बुक रीड नहीं करेंगे, बल्कि वो फाइंड आउट करेंगे वो सारी चीजें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें जो हर सक्सेसफुल इंसान पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए करता है। और उन सो फिर अपना घर बचा लिया, कुछ थोड़े टाइम के बाद फिट होकर एक अल्ट्रा मैराथन भी भागा और एक बहुत हैप्पी इंसान बन गए। साइलेंस ऑथर का मतलब है मेडिटेशन या प्रेयर। बहुत से लोग सुबह उठते साथ ही दुनिया भर की चीजों का टेंशन लेने लगते हैं, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ के, कुछ फेसबुक चेकआउट करके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन सक्सेसफुल लोग ये सब नहीं करते। वो यूजुअली सुबह उठने के बाद साइलेंट मोड पे जाते हैं, मतलब मेडिटेशन, योगा या प्रेयर जैसी चीजें करते हैं, जो कि उनके ब्रेन को रिलैक्स रखते हुए एक काम और अच्छी शुरुआत देता है और ब्रेन की पीक परफॉर्मेंस पे काम करने के लिए उन्हें तैयार भी करता है। पहले ऑथर को लगता था कि मेडिटेशन बस एक स्पिरिचुअल चीज होती है जिसका सक्सेस से दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, बट फिर रिसर्च करने पर और सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ने के बाद उन्हें पता चला कि मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जिसने उन सक्सेसफुल लोगों को आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा हेल्प करा है। इनफैक्ट एक बिलियनर हेज फंड मैनेजर रे डालियो कहते हैं कि मेडिटेशन उनकी फाइनेंशियल सक्सेस की नंबर 1 की है। और बस वो ही नहीं, ऑलमोस्ट सारे बड़े सीईओज अपनी ब्रेन को पीक परफॉर्मेंस पे काम कराने के लिए और डिसिप्लिन रख पाने के लिए मेडिटेशन को ही क्रेडिट देते हैं। इसलिए सबसे पहली चीज, प्रैक्टिस साइलेंस। अफर्मेशन एक पावरफुल है। अफर्मेशन और कुछ नहीं, बस एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है जो हम अपने आप को बार-बार बोलते हैं।
बैठ जाती है, जिससे हमारा ब्रेन वो बात सच मानने लगता है और फिर हम रियलिटी में भी वैसे ही बनने लगते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप बार बार अपने आप को ये बोलोगे मैं एक कॉन्फिडेंट इंसान हूं, मैं एक कॉन्फिडेंट इंसान हूं, तो फिर ये चीज धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठने लगेगी और जब एक बार ये बात आपके सबकॉन्शियस दिमाग में बैठ जाएगी तो फिर आप रियलिटी में भी एक कॉन्फिडेंट इंसान बनने लगोगे। थर्ड, ये भी अगेन एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जो थोड़ी बहुत अफर्मेशन से सिमिलर है। बात को बार बार रिपीट करके बैठाते हो, जबकि विजुअलाइजेशन में आप अपनी इमेजिनेशन का यूज करके वो चीजों के बारे में सोचते हो, उसकी इमेजेस बनाते हो दिमाग में जो आप रियलिटी में चाहते हो। एग्जाम्पल, जब ऑथर को मैराथन की प्रैक्टिस करने जाना होता था तब उन्हें स्टार्टिंग में काफी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन फिर जब उन्होंने विजुअलाइज करना स्टार्ट किया प्रैक्टिस करने जाने से 1 घंटे पहले कि वो जॉगिंग करने जा रहे हैं, अपने शूज पहन रहे हैं और उनके चेहरे पे एक स्माइल है और उन्हें अच्छा फील हो रहा है, तो ऐसे विजुअलाइज करने के बाद ऑथर का प्रैक्टिस करने जाना बहुत आसान हो गया। ऐसे ही आप भी बहुत सी अलग अलग चीजों के लिए विजुअलाइजेशन का यूज कर सकते हो। तो हमें एक्सरसाइज करने के साइंटिफिक बेनिफिट्स ह्यूज है, क्योंकि एक्सरसाइज से आपके दिमाग में ज्यादा ऑक्सीजन जाता है, आपका दिमाग एंडोर्फिन रिलीज करता है, आपकी थिंकिंग क्लियर होती है, आपको बेटर फील होता है, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है पूरे दिन के लिए, एंड ऐसे ही बहुत से अलग अलग फायदे होते हैं। और है कि आपका जिम जाके एक्सरसाइज करना जरूरी है, बल्कि ये सब बेनिफिट्स आप सुबह में बस कुछ मिनट की एक्सरसाइज करके भी ले सकते हो। इनफैक्ट सुबह में बस 1 मिनट जंपिंग जैक करना आपकी एनर्जी, अवेयरनेस, थॉट, क्लैरिटी को 10 गुना तक ज्यादा बढ़ा सकता है। और रीडिंग से ऑथर का मतलब न्यूज़पेपर या 50 शेड्स ऑफ ग्रे जैसी बुक रीड करना नहीं, बल्कि वो बुक्स रीड करना जो आपको डेवलप करे। एग्जांपल, सेल्फ हेल्प बुक्स, जिनकी समरी मैं आपको हर वीडियो में देता हूं, वैसी बुक्स जो आपकी इंटेलिजेंस, आपकी नॉलेज और जो आपको खुद को इंप्रूव करे हर तरीके से। रीडिंग बुक्स के बेसिस पे मेरा पूरा चैनल बना है, सो ऑब्वियसली ये काफी इंपॉर्टेंट हैबिट है। ऐसे आता है स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग से ऑथर का मतलब है लिखना, राइटिंग। लिखना आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स एक्सेट्रा को। लिखने से कुछ तो अलग सी स्पेशल चीज होती है जो बहुत पावरफुल होती है, जो हमें अपने ड्रीम्स को रियलिटी बनाने में बहुत हेल्प करता है। रिचर्ड ब्रांसन जो कि एक बिलियनर है, वो बोलते हैं कि सबसे बेस्ट चीज जिसने मुझे बिलियनर बनाया और जो आप भी कर सकते हो वो ये है कि अपने साथ हमेशा एक बुक और पेन रखो, फिर जो भी थॉट्स, आइडियाज, नॉलेज आपको मिलती है या कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें उस बुक में लिखते रहो हर रोज। ये सिंपल चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। मैं पर्सनली भी बहुत सी अलग अलग स्पेसिफिक चीजें अपनी बुक में लिखता रहता हूं हर रोज, जिसने मुझे सच में बहुत हेल्प करा है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपने चैनल को हिट कराने के लिए। और तक पहुंचे तो चलिए कि अभी 6:30 हुए, 8 बजे तक मैं काम शुरू कर सकता हूँ। मुझे आर्टिकल भी तो लिखना है, एडिट भी करना है। ओफो, मुझे एडिटिंग पसंद नहीं है यार, मेरा फ्रेंड भी तो आने वाला है, मैं क्या करूँ? ये आदत ठीक नहीं है। दिन की शुरुआत रिलैक्स ब्रेन से होनी चाहिए। मिरेकल मॉर्निंग का की पर्पस है साइलेंस के जरिए हमारी जिंदगी में स्ट्रेस कम करना। ऑथर मेडिटेशन सजेस्ट करते हैं, बट इस स्टेप का मतलब ये है कि हम हमारा दिन रिलैक्स और रिफ्रेश रहकर स्टार्ट करें। आप प्रे कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो। अगर आपसे मेडिटेशन नहीं होता है तो सिंपली आंखें बंद करके अपने आसपास की आवाजें सुन सकते हो, पेड़ों से टकराती हुई हवा की आवाज, परिंदों की आवाज। सेकंड हैबिट है एफर्मेशंस। खुद से पॉजिटिवली बात करना बहुत पावरफुल होता है। ये कई प्रोफेशनल एथलीट्स, एक्टर्स और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। ये काम आप अपनी लाइफ का विजन लिख कर भी कर सकते हो। ये 3 बातें आप लिख सकते हो। आप अपनी लाइफ के हर एरिया में खुद को किस तरह देखना चाहते हो, आप ये चेंजेस क्यों चाहते हो, और ये सब करने के लिए आप क्या कमिटमेंट कर सकते हो। ये सब बातें एक छोटे नोट पर लिखो और खुद के लिए हर सुबह पढ़ो। थर्ड हैबिट है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस जुड़वा भाई की तरह है। आपको लगेगा कि ये सेम है बट ये अलग है। एफर्मेशंस आपकी मदद करते हैं आपके लॉन्ग टर्म गोल्स आपके माइंड में रखने और एक आइडिया देते हैं आपका एंड गोल किस तरह दिखेगा। ये समझ लो कि विजुअलाइजेशन एक वीडियो है तो एफर्मेशन उसकी ऑडियो है। गिटार बजाना सीखना है, इमेजिन करो कि आप कैसे स्टार्ट करोगे। इमेजिन करो आप खुद को गिटार के वायर्स को टच करते हुए, आपका फेवरेट सॉन्ग प्ले करते हुए। आप कोई मोबाइल ऐप बिल्ड कर रहे हो तो इमेजिन करो कोडिंग इंटरफेस के बारे में, खुद को कोड टाइप करते हुए इमेजिन करो। विजुअलाइजेशन बेबी स्टेप्स की तरह है, ये आपकी मदद करता है मॉर्निंग रूटीन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले करने में। एफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन दोनों मिलकर आपके डेली रूटीन के बारे में आपकी सोच बदल देंगे। फोर्थ हैबिट है एक्सरसाइज। हमें पता है कि एक्सरसाइज जरूरी है, सबको बताते हैं, बट सबसे कॉमन है अब काफी लेट हो गया, दिन निकल आया, अब एक्सरसाइज करके क्या मतलब। इन बहानों से निपटने के लिए थोड़ा टाइम मॉर्निंग में ही निकालिए। ऐसी कई एक्सरसाइजेज है जो आप बिना किसी इक्विपमेंट के कर सकते हो, लाइक पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, जंपिंग जैक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिफ्थ हैबिट है रीडिंग। पढ़ना और लिखना पर्सनल ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा है। हर सुबह 10 पेजेस पढ़ने की कोशिश करिए। इस हिसाब से एक साल में आप 3600। सिक्स्थ हैबिट है स्क्राइबिंग या राइटिंग। कुछ मिनट्स दीजिए होगे, इसे मॉर्निंग पेजेस भी कहते हैं। ऑथर पेज को 2 पार्ट्स में लिखते हैं। पहला पार्ट लेसन्स लर्न, यानी अभी तक क्या सीखा और क्या क्या अचीव किया, एंड सेकंड पार्ट न्यू कमिटमेंट्स, यानी और क्या इंप्रूव करना है, क्या सीखना है, क्या नया करना है, इस करने में कि उन्होंने क्या अचीव किया है और क्या इंप्रूव करना है, जिससे वो अपने अचीवमेंट्स के लिए काफी ग्रेटफुल भी हो गए।